टाइट है थोड़ा। नीचे लाओगे मैं कल से करिए करिए रुको होगा 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 तो टाइट है पर बच्चों को स्टेज हो प्रोग्राम तो ही एक घंटे का रेस्ट लेगा तो मैं सर थोड़ा क्या बता I welcome you all to this seminar, End of Illness. पिछले 2 महीनों से we are conducting these programs, as you could see on the slides. आपने अभी देखा. Nothing in this world can destroy your happiness more than you are trying to live with an illness. You are trying to live with a sickness. दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखदायी चीज़ है बीमारी के साथ जिंदा रहने की कोशिश करते रहना. इससे पहले कि हम प्रोग्राम फॉर्मली शुरू करें, मैं आदर्श विद्या निकेतन की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुरूप कौर को रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने 7 अप्रैल को आपने फोटोग्राफ देखा किरण बेदी जी जब आई थी, आप ही की तरह यहाँ पे आके लाइक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट अटेंड किया, और उसके बाद उन्होंने जो अपने स्कूल में किया, अपने घर में किया, मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में ये एक्सपीरियंस ऑडियंस से शेयर करें. I welcome Dr. Anurup Kaur, the principal of Adarsh Vidya Niketan. यहाँ से चढ़िए, यहाँ पे साइड ये खड़े हुए हैं ना, वो साइड स्टेज पे जाइए, जाओ उनके साथ जाओ, स्टेज पे जाना है, जाओ जाओ मैम. Good morning. Okay, today as I have got the opportunity from Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary to share my views on this concluding day of End of Illness program. First of all, I really welcome you all that you also became the part of this program, as I became the member part of this program in the month of March and April. So first of all, I welcome our special guest, Shri PDT Acharya ji, and such a great personalities as you are looking that they are also going to join within a short time. So really the very first day when I was here to see about this or to hear about this program, I felt I was just wondering what exactly it is. But after knowing about this program, I concluded that Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary is a revolutionary man. He is trying to make this world, this earth, free from illness. So, first of all, let me congratulate Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary, and definitely you will also feel like that after hearing from him. So let us give a big clap to him for this wonderful job. Let me explain, like in the month of March and April, they started this program
from the schools, different schools. They have gone and means his team, they were going to the different schools. They were giving training programs, workshops, seminars to the students as well as teachers. After that, they selected some students and they invited them for one-day training program. The students who have joined that program, we came to know like they are also feeling very different type of experience after hearing. ये बहुत ही बड़ा अनुभव था बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए कि एक ऐसी पद्धति जो कि शोध के माध्यम से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, he is going to explain after this speech, जिसमें वो बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो जब हमने पहली बार यहाँ आके सुना तो हमें भी बड़ा अजीब सा आश्चर्यचकित कर देने वाला लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर्स कभी भी हमें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं करते कि what will be the result. They just keep telling us कि आपको मेडिसिन लेने हैं, आपको इन चीज़ों पे प्रिकॉशंस लेने हैं और ये करते रहना है, लाइफ लॉन्ग चलेगा. डायबिटीज़ है, वी नेवर हियर कि कभी कोई डायबिटीज से बहुत आसानी से बाहर निकल पाया हो. हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, इवन कुछ चीज़ें जो हम नॉर्मली अपने आप को बीमार करते हैं लेकिन हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वी नेवर गेट द प्रॉपर आंसर. मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बहुत जल्दी थोड़ा सा ऊंचाई पे जाने पे एक सफोकेशन फील करती थी. तो जो डाइट प्लान सर ने बताया उसके बाद मुझे महसूस होता है कि वो प्रॉब्लम मेरी रिमूव हो रही है, मुझे अब वैसी दिक्कत नहीं होती. मेरे फादर जो कि किडनी एंड हार्ट पेशेंट है, बहुत ही बुरी कंडीशन में काफ़ी टाइम एडमिट रहे पीजीआई में भी. एंड उन्होंने इस डाइट चार्ट को फॉलो किया फ्रॉम लास्ट 1 month और अब वो ये कहते हैं कि मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ. So all these experiences, even my husband, my daughters, we all are following the diet. और कभी ऐसा नहीं लगता कि ये खाया नहीं जा सकता या anything else. Means I know Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary, he will explain you very well. So these things are very different and really I appreciate Dr. Vishwaroop for such type of revolutionary environment to make our earth illness free, disease free. So once again I congratulate him and it is really a wonderful job कि ये छोटे छोटे बच्चे, इवन हमारे स्कूल से भी काफ़ी सारे बच्चों ने ये 1 day ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि इन्होंने 22 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया था उसमें पार्टिसिपेट किया और वो बच्चे आगे जा कर के अपने नेबर्स में अपने पेरेंट्स को भी इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं. नाउ देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज. इवन हमने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को अपने स्कूल में बुलवाया था तो वहाँ पे भी काफ़ी पेरेंट्स क्यूरियस थे एंड दे हर्ड हिम वेरी पेशेंटली एंड दे जस्ट थॉट कि दिस इज़ रियली a very good thing that we are hearing from him. तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है जो कि उन्होंने हमारे सामने लाई है. And once again I would request you to give a big clap to Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary for such a wonderful job. Thank you, sir. हाँ जी, काम करो नीचे. अरे जाओ भाई साहब, ठीक ना ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं. ना एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है.
Good morning to all of you. I welcome you all for End of Illness campaign, and I would like to start by welcoming our esteemed chief guest, Shri PDT Acharya ji, on the stage. I would request him to please come up on the stage, please. And I would request Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary to please welcome him. Mr. PDT Acharya is the former Secretary General of Lok Sabha. Welcome, sir. Thank you, sir. Please, I would request you to take your seat. I would request Mr. Dharamveer ji to please come up on the stage. Mr. Dharamveer ji. Thank you, sir. Thank you for coming. So I would request Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary to start the session. Please welcome him. धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रामविलास शर्मा जी जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, दे आर अबाउट टू कम, एंड हमारे बीच कृष्णपाल जो यहाँ के एमपी आप सब ने हमने मिलकर चुना है, वो भी रास्ते में वो आने वाले हैं। और कल शाम को मुझे ईमेल आया है मेनका गांधी जी का, और ईमेल आपको नहीं दिखेगा यहाँ से, और उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आज 8 बजे सुबह 8 बजे उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बीजेपी का, कल जो आपको पता है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने माफ़ी मांगी कि वो जब अगली बार हम बुलाएंगे वो ज़रूर आएंगे। दैट्स व्हाट इज़ द मैसेज शी वांटेड मी टू कन्वे टू यू। और जितना मैं उनको समझता हूँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, वाकई में ज़रूर कोई बहुत मुश्किल घड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा होगा। दैट्स व्हाई शी इज़ नॉट हियर। पिछले दिनों मैं आप सबके बच्चों से मिला जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और उन सब बच्चों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपके बारे में बच्चों ने जो जवाब दिए वो मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए जिन बच्चों को हमने सवाल पूछा और जिन्होंने जवाब दिए वो हमने लिखित में लिए भी, उनसे साइन करा के वो हमारे पास हैं। और फिर उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स को हमने इनविटेशन कार्ड भेजा जो आपको मिला, जिसकी तो आप आए। मैंने जो सवाल पूछा, सवाल वो ये था, इससे पहले कुछ लोग खड़े हैं जबकि यहाँ सीट बहुत सारी खाली हैं। जिनके जिनके साथ में सीट खाली है वो अपना हाथ रेस करें ताकि जो लोग खड़े हैं वो हाथ रेस की डायरेक्शन में जाके वहाँ बैठ सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सीट्स विच इज वेकेंट। रादर आप लोग थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड ताकि इस तरफ अल्टीमेटली सीट खाली रह जाए। कहाँ पे है? आप थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे। थर्ड रो 2 सीटें हैं। मैंने आपके बच्चों से जो सवाल पूछा वो ये, जब वो सब मिले मुझे, जैसे आज आपसे मुलाकात हो रही है, और सवाल द क्वेश्चन वाज कि अगर गॉड आपके पास आ जाए
और भगवान आपसे बोले, दो ऑप्शन दे आपको आपके माता पिता के बारे में, मैंने आपके बच्चों से पूछा कि आपके माता पिता बहुत अमीर होंगे, जो भी आप चाहेंगे जीवन में आपके बोलने से पहले वो सारी मुरादें पूरी कर देंगे। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार, खिलौने चाहिए, वॉट एवर यू विल डिमांड इन योर लाइफ इट विल फुलफिल्ड, योर पेरेंट्स विल बी सो रिच। पहला ऑप्शन। लेकिन वो जीवन भर बीमार रहेंगे और 70 के उम्र तक वो चल बसेंगे, पहला ऑप्शन। या फिर आपके पेरेंट्स बहुत गरीब होंगे, इतने गरीब कि जिस स्कूल में अभी आप पढ़ते हैं उसकी फीस भी नहीं दे पाएंगे, और प्रिंसिपल बोलेगी आप कल मत आना स्कूल में, आपके पिताजी ने फीस नहीं दी। आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हेल्दी रहेंगे, 100 साल जिंदा रहेंगे। ये सवाल मैंने पूछा, ऐसे ही रिपीट किया 2-3 बार। फिर मैंने पूछा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ रेस करें, जो गॉड को बोलेंगे नहीं सेकंड वाला ही ठीक है, हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन 100 साल वो जिए। आई एम श्योर आपको ये विश्वास होगा कि ऐसा सवाल मैंने करीब 83,000 स्टूडेंट से पूछा, और सभी का जवाब ये था कि हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स 100 साल जिए, चाहे हमें कुछ ना मिले। सो दोस्तों, थैंक यू। अक्सर मैं भी एक पेरेंट हूँ, अक्सर हम इस जद्दोजहद में लग जाते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करनी है। लेकिन दोस्तों, बच्चों की जो पहली ख्वाहिश है वो तो आपका हेल्थ है, राइट? उसके बिना उनको कुछ नहीं चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अभी इन दिनों स्कूल्स में मैं गया, 83 स्कूल्स, अलग अलग पब्लिक स्कूल, उनमें से आप सबके स्कूल में गया, तभी आपको हमारा इन्विटेशन मिला, और एग्ज़ाम का माहौल चल रहा था, मार्कशीट का, अब तो रिजल्ट आ गए हैं। अगर गॉड यहाँ पे अभी आ जाए और आपको पूछे कि आपका बच्चा टॉपर होगा, ना केवल स्कूल का, आपके शहर का, हर बार टॉपर होगा, हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आएंगे, लेकिन वो थोड़ा बीमार सा रहेगा, हमेशा बीमार सा रहेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपका जो बच्चा है वो बहुत हेल्दी होगा, बीमार पड़ेगा ही नहीं, लेकिन हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आएंगे, सारी टीचर बोलेंगी ये तो बहुत दलाइक बच्चा है, 0 मार्क्स आएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं, हाथ रेस करें, जो बोलेगा गॉड को कि गॉड सर आप सेकंड वाला ऑप्शन ही ठीक रहने दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू विल गो फॉर सेकंड ऑप्शन? थैंक यू। कितने लोग पहले ऑप्शन के लिए जाएंगे, वो भी हाथ रेस करें, और बाकी बीच वाले लोग कहाँ गए? मैं समझ गया कि हाथ ऊपर करने में थोड़ी आलस हो रही है। आपकी दिल की बात मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम ए पेरेंट। मेरा बच्चा अभी 8 महीने का है, 8.5 महीने का ही है, और मुझे अभी से चिंता लग गई, तो मैंने कहा कि आप पेरेंट्स से आपसे टिप्स लेता रहूँगा, इसलिए मैंने कहा चलो ये भी एक एजेंडा है मेरे आज का यहाँ पे। तो आज हमारे बीच करीब 16 शहरों से, अलग अलग शहरों से, पोरबंदर से, सूरत से, हैदराबाद से, मेरठ से, नागपुर से लोग आए हैं। हमारे वॉलंटियर, हमारे मित्र आए हुए हैं। वो मित्र ऐसे जैसे आप मित्र बनने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने जब हमारा एंड ऑफ इलनेस प्रोग्राम देखा तो उन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया इसको प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप भी ऐसा करने वाले हैं। जीवन में जो सबसे ज़्यादा दुखदाई चीज़ है, बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगना। एक सवाल मैंने सारे बच्चों से पूछा, सवाल मैं आप अभी पूछता हूँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर? या आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर? क्या आंकड़ा है वो? 120/80। ये सवाल मैंने बच्चों से पूछा, स्कूली बच्चों से, सबने 120/80 बोला। मैं अपने मेमोरी में गया, अपने पास को याद किया मैंने, और जब तक मैं क्लास 12th में था तब तक तो मुझे 120/80 याद नहीं आ रहा कि मुझे याद था। शायद आपको भी नहीं याद होगा कि आपको याद होगा। मैं ये सोचा कि मेरे सिलेबस में 120/80 था नहीं। व्हाट इज स्टैंडर्ड पीपी, ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, सारा कुछ तो था नहीं। शायद आज के सिलेबस में ये डाल दिया हो।
क्लास 5 के क्लास 4 के बच्चे भी 120/80 बता पा रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि आपने सिलेबस में डाला है? प्रिंसिपल बोला नहीं डाला है, इनके फैमिली में इनके घर में सिखाया होगा। तो आप तो घर वाले हैं, तो आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आपने 120/80 बच्चों को सिखाया? क्या आपने स्टैंडर्ड शुगर कितना वो सिखाया, शुगर लेवल कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? आई एम श्योर आपने भी किसी ने नहीं सिखाया होगा। लेकिन सारे के सारे बच्चों को ये स्टैंडर्ड कैसे पता आज, जो पहले हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे तब नहीं पता होता था? कौन सी दवाई होनी चाहिए, कितना दवाई हो, सारा डोज वगैरह कैसे पता? एनीबडी हु कुड से द आंसर, क्या कारण? 10 साल पहले सर आप लोग आपका जवाब ये मैं रिपीट करता हूँ, लोग घरों में दवाई ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाते हैं, और पेरेंट्स को खाते हुए देख के लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। आई एम श्योर यू एग्री विद दिस, राइट? लेकिन सवाल ये है कि 15 साल पहले जब मैं स्कूल में था, जब आप स्कूल में थे, याद कीजिए कितने से आप अंकल आंटी थे जिनको बीपी की शिकायत थी, डायबिटीज की गोलियां खाते थे, हाई कोलेस्ट्रॉल दवा लेते थे। क्या 15 सालों में इंसान की बायोकेमिस्ट्री एकदम से बदल गई? हेलो, ऐसा तो नहीं था। तो ऐसा क्या हो गया कि आज हर घर में लोग बीमार हैं इतने ज्यादा कि बच्चे उसको देखते हैं और वही सीखते रहते हैं। सो हमें इसको जरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं हेल्प लूंगा एक बच्चे की। आपका नाम क्या है? वैभव। कौन स्कूल में पढ़ते हैं वैभव? आयशा। वैभव को मैं पहले से जानता था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा एक बार और मैं कंफर्म कर लूँ कि वैभव भी है क्या। वैभव इज ए गुड स्पोर्ट्स मैन। वो 100 मीटर की रेस में हमेशा फर्स्ट आते हैं। अब इमेजिन कीजिए वैभव खड़े हैं, 100 मीटर की रेस की ये लाइन है, वैभव खड़े हैं, वहां से आवाज आ रही है कि 4 3 2 1 के बाद एक गोली चलेगी, उसके बाद आपको भागना है। वैभव खड़े हैं, कान से सुन रहे हैं, और यहाँ और भी खिलाड़ी खड़े हैं और वैभव सुन रहे हैं, आवाज आ रही है 4 3 2 1। जब वैभव ने 1 की आवाज सुनी, इस वक्त क्या आपको लगता है कि वैभव की हार्ट बीट अभी से फास्ट हो जाएगी, या जब वैभव एक्चुअली दौड़ने लगेंगे तब हार्ट बीट फास्ट होगी? पहला या दूसरा? पहला। अभी वैभव ने भागना शुरू नहीं किया, अभी उसने कुछ शुरू नहीं किया, अभी तो खड़े हैं, जस्ट सुन रहे हैं, अभी हार्ट बीट फास्ट शुरू हो जाएगी। यू आर राइट। लेकिन जरा सोचिए, अभी हार्ट बीट फास्ट कैसे हुआ? वैभव ने कुछ काम करना शुरू नहीं किया। अब जरा इसको अंडरस्टैंड करें, वैभव के दिमाग के अंदर जाते हैं। वैभव ऐसे खड़े हैं, भागने को तैयार है, वहां से आवाज आ रही है 4 3 2। जब ऐसी आवाज आ रही तो वैभव का दिमाग, एक ब्रेन देख रहा है, ये वैभव ऐसे क्यों खड़ा है, ये क्या करना चाहता है, वो आवाज कहां से आ रही है, लोग क्यों खड़े हैं? तो ब्रेन क्या करता है, पुरानी मेमोरी में जाता है कि पिछली बार जब वैभव ऐसे खड़ा था और ऐसी आवाज आ रही थी तो वैभव ने क्या किया था, वो तो दौड़ा था, भागा था, राइट। इसका मतलब ब्रेन ने अनुमान लगा लिया इस बात भी वैभव दौड़ेंगे, भागेंगे। ब्रेन का काम होता है सबसे पहले इंटीमेट करना हार्ट को कि भाई अगला स्टेप क्या होने वाला है। ब्रेन ने इमीडिएटली हार्ट को बताया, देखो भाई वैभव भागने वाला है। हार्ट को पता है जब भी वैभव भागेगा, हार्ट से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मांगेगा, ज़्यादा कई सारे हार्मोन मांगेगा। तो हार्ट ने अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी, हार्ट बीट पहले से फास्ट हो गया, राइट। सो अब वैभव एक्चुअली भागने लगे, हार्ट बीट फास्ट है, ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक हो रहा है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट सर्कुलेट हो रहा है, राइट। लेकिन वैभव के बॉडी के कुछ ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ मसल्स पे ज़्यादा जोर आ रहा है, यानी कि उन मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उन मसल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ब्रेन को वहाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहुँचाना है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो देना पड़ेगा। तो ब्रेन अगर वहाँ ज़्यादा ब्लड देगा तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज कांस्टेंट, वो तो एक जैसा ही है, वो ना बढ़ सकता ना घट सकता। तो ब्रेन सोचता है कौन से ऑर्गन से मैं ब्लड लेके उस ऑर्गन में पास ऑन करूँ, मसल्स को दूँ। ब्रेन दोबारा पास की मेमोरी में जाता है और ये देखता है कि वैभव जब भी दौड़ता अपने जीवन में खाना नहीं खाता, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव रीजन है यहाँ पे ब्लड की जरूरत खास नहीं है, इस वक्त तो खाएंगे नहीं। तो 25% ऑफ द ब्लड जो कि नॉर्मली इस वक्त भी आपके इस एरिया में सर्कुलेट हो रहा है, उसको ब्रेन स्विच ऑफ करके सिर्फ 5% कर देता है। कितना सरप्लस बच जाएगा? 20%। तो वो 20% बाकी मसल्स में ब्रेन भेज रहा है, राइट। सो वैभव भाग रहे हैं, अभी भाग रहे हैं, राइट। ब्रेन उसको मैनेज कर रहा है। जब भागेंगे तो वैभव की जो बॉडी की हीट है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आपको तो पता है ना, ज़्यादा हीट अगर बढ़ जाए बॉडी की
तो ज़्यादा हीट में बॉडी के ऑर्गन स्विच ऑफ होने लगते हैं, यानी कि बंद होने लगते हैं, यानी कि आप डेड हो सकते हैं। तो ब्रेन सोचता है अब मैं क्या करूं। ब्रेन के पास दो ऑप्शन है, या तो वैभव को थका दे, वैभव धड़ाम से गिर जाए, जैसा अक्सर आपने देखा, राइट, यानी कि अब आगे वैभव दौड़ेंगे नहीं, हीट अप ज़्यादा नहीं होगा। आपने देखा जब गाड़ी चलाते हैं धुआं निकलता है आगे, तो गाड़ी को रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ब्रेन कैसा कर सकता है, लेकिन ब्रेन ऐसा करेगा तो वैभव हार जाएंगे। ब्रेन नहीं चाहता कि वैभव हार जाए, राइट। तो ब्रेन क्या करता है, एक और मैकेनिज्म ऑन कर देता है। ब्रेन स्विच ऑन कर देता है स्वेट ग्लैंड्स, राइट, पसीना, पसीने के रास्ते एवोपरेट होगा वो वाटर, पसीना जो है बनेगा, और उससे एटमॉस्फेयर में सारा हीट जाने लगेगा, यानी कि वैभव का हीट एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अब वैभव भाग रहे हैं और बॉडी से पसीना आ रहा है, और पसीने की वजह से धीरे धीरे हीट भी बाहर निकलता जा रहा है। सो इट विल कीप ऑन हैपनिंग। अब वैभव फिर भी भाग रहे हैं, राइट। एक टाइम आएगा कि हमारे बॉडी का जो पानी की मात्रा है वो कांस्टेंट है, थोड़ा सा ही है, वो भी खत्म होने लगा। पानी जब खत्म होने लगेगा तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, खून वो ज़्यादा, राइट, उसकी फ्लूइडिटी वो कम हो जाएगी, राइट, उसका फ्लो में मुश्किल होगी, एंड उससे भी बॉडी जैम हो सकता है, ही कैन डाई ऑन द स्पॉट। तो अब ब्रेन सोचेगा, दो ऑप्शन दोबारा है, या तो ब्रेन अभी वैभव को थका दे, वो गिर जाए, या फिर ब्रेन कुछ और इंतजाम करे। तो ब्रेन ने एक और इंतजाम किया, वो क्या, प्यास। आपने ध्यान दिया, कभी डिस्कवरी में दिखाते हैं, स्पोर्ट्स चैनल में दिखाते हैं, वो भाग रहा है और जो खिलाड़ी और 10 किलोमीटर की रेस में, और रास्ते में पानी लेके खड़े और पानी छीनते हुए भाग, देखा, पीते हुए देखा। तो वैभव को प्यास लगी और वैभव भाग रहे हैं, साथ में वो कुछ लोग रास्ते में खड़े पानी लेके तैयार, वैभव ने पानी छीना, भागने की स्पीड को बरकरार रखा, पीते हुए गए और भाग रहे हैं। वैभव ने 1 लीटर पानी पी लिया, भाग रहे हैं, मैराथन में भाग रहे हैं, राइट। आप गौर कीजिए, अगर 1 लीटर पानी पी जाएंगे तो एकदम से वैभव क्या आ जाएगा, सुसु आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर सुसु आ जाएगी, वैभव बोलेगा अगर आप लोग ठहरो मैं सुसु करके आया फिर भागूंगा, राइट, वैभव तो हार जाएंगे। तो ब्रेन नहीं चाहता कि वैभव हार जाए, तो ब्रेन क्या करेगा, राइट, जो ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, उसकी जो सेंसेशन है उसको स्विच ऑफ कर देगी, राइट, उसको स्विच ऑफ कर देगी, ताकि वैभव भागते तो रहे, राइट, लेकिन वो यूरिनेट की सेंसेशन वो अभी ना आए, जब तक कि रेस ना खत्म हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर ब्रेन इज लाइक एन एक्सपर्ट ड्राइवर। पल पल कैसे वो आपको अंडरस्टैंड करके पुरानी मेमोरी में जाके आपके बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके शहर में, आपके इस लोकेलिटी में जहां आपकी गलियां हैं, या आपके इस रास्ते मेन मथुरा रोड में, व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड, एनीबॉडी, सेफ ड्राइविंग स्पीड कितना होना चाहिए? कोई आपसे पूछे आपके शहर में आके कितना होना चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर, राइट, 50 किलोमीटर। मैं अपनी गाड़ी का जो मोटर है वो ऐसे सेट कर देता हूँ कि जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी वो 50 किलोमीटर में ही चलेगी, ना कम ना ज़्यादा। क्या वो सेफ होगा, ये सुन लो, नो। अच्छा, तो ये तो 50 तो सेफ नहीं होगा भाई, तो कितने में मैं कर दूँ? एनी अदर आंसर? 60 किलोमीटर कितना कर दूँ? 20 कर दूँ। मैं 20 कर देता हूँ, फिर मथुरा रोड में ले जाता हूँ, मैं हाईवे में ले जाता हूँ और 20 पे रखता हूँ, बिल्कुल वो 20 पे चलेगा, ना ज़्यादा ना कम। विल दैट बी सेफ? कैन नॉट बी सेफ, तब भी वो सेफ नहीं होगा, राइट। सो व्हाट इज द सेफ लिमिट? एक्चुअली आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर है तो आपको पता है कि कोई एक सेफ लिमिट हो ही नहीं सकती, वो तो सिचुएशन में बेस्ड है। हर पल आप उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे, थोड़ा चेंज करते रहेंगे। एवरी मोमेंट बाय मोमेंट आप उस सराउंडिंग को देखेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को आप कंट्रोल करेंगे। सिमिलरली आपका ब्रेन भी ऐसा करता है। आपने देखा वैभव केस में ब्रेन ने कैसे सर्कुलेट किया, किस तरह से मोमेंट बाय मोमेंट चेंज किया। ये जो 120/80 का आंकड़ा है, ये कोई आंकड़ा ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल it is an imaginary, right, a symbol, just imaginary number, right। ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि 120/80, ये सवाल आज से 10 साल पहले पूछा होता तो आप बोलते 140/90, उससे 5 साल पहले पूछा होता तो आप बोलते 160/100, अगले 5 साल बाद पूछूंगा तो बोल देंगे आप 110/70। ये आंकड़ा स्क्वीज होता जा रहा है, राइट। सो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब बीपी लेने लगता है, जितना बड़ा डॉक्टर उतनी हार्ट बीट फास्ट। गौर किएगा भी, राइट। जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखी, अगर वो ज्यादा फीस लेने वाला डॉक्टर तो हार्ट बीट और फास्ट, राइट। जितना डॉक्टर गंभीर उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई। अब जब डॉक्टर मेजर करेगा, दैट इज नॉट योर रियल ब्लड प्रेशर, दैट इज द ब्लड प्रेशर एट दैट मोमेंट, राइट, लाइक वैभव्स, राइट। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट।
तो डॉक्टर ने जो ब्लड प्रेशर मेजर किया उनके हिसाब से दैट इज योर रियल ब्लड प्रेशर, बट रियलिटी ये है वो तो उनको देख के आपकी बीपी बढ़ गई। अब जो वो डोज बना के आपको देंगे वो डोज जो होंगे वो आपके लिए नहीं है, वो उस इंसान के लिए है जो डॉक्टर के चैम्बर में पल भर के लिए था। दैट इज नॉट यू। एंड 70% ऑफ द पेशेंट इन द वर्ल्ड दे सफर फ्रॉम दिस सिकनेस कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। आप ब्लड प्रेशर के शिकारी नहीं है, आप व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, एक बात आप मान लीजिए, अगर आप कोई बीपी की गोली ले रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं बनी है। एटलीस्ट 70% लोगों के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ, 70% ऑफ द पीपल, दैट इज नॉट योर बीपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, देयर इज नो स्टैंडर्ड लिमिट 120/80, 120/80, राइट। हमारे दिमाग में 120/80 चला गया है। अब मान लीजिए यहाँ का कोई डॉक्टर है, वो जाता है ब्राजील में। ब्राजील में जो फिगर है 95/61, ब्राजील की जो आम आबादी है उनकी अगर बीपी मेजर करेंगे सबकी 95/61, तो हमारा यहाँ का डॉक्टर जाएगा बोलेगा ये सारे लोग बीपी के शिकार है भाई, इनको तो इनकी बीपी बढ़ाओ पहले। तो वही वाले डॉक्टर चले जाएंगे पोर्तुगल में जो आम सिटीजन की जो बीपी है 135/85, वहां अगर ये वाले डॉक्टर चले जाए बोलेंगे पहले तो इनकी बीपी घटाओ, ये सब हाई बीपी के पेशेंट, हाइपरटेंशन के मरीज हैं। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो 120/80 है ये आया कहां से, कभी हमने पूछा, राइट? ये आया कैसे, कभी हमने सोचा? हमने ये सोचा कि भाई 120/80 मुझे पता है, हर हाल में मैं इसको 120/80 पे ले आऊंगा, राइट? हम एक ऐसी चीज को टारगेट कर रहे हैं जो टारगेट इटसेल्फ इज कंफ्यूजिंग। मान लीजिए यहां से आपको आगरा जाना है, यू आर एक्सपर्ट ड्राइवर, यू हैव ए गुड कार, आपने सोचा जितने सारे इंडिकेशन आगरा की तरफ होंगे मैं उसको फॉलो करूंगा, जाऊंगा, लेकिन इंडिकेशन इटसेल्फ इज फॉल्टी। अगर इंडिकेशन कहीं और डायरेक्शन दिखा रहा है जो आगरा को पहुंचाएगी नहीं, आप कितना भी इंडिकेशन को फॉलो करेंगे, यू विल एंड अप इन रीचिंग समथिंग समवेयर एल्स, राइट? सो ये कहानी शुरू कहां से हुई? 1997 की बात है। 1997 से पहले जो स्टैंडर्ड बीपी हुआ करता था, सिस्टोलिक बीपी 160 हुआ करता था, डायस्टोलिक 100। WHO ने सोचा चलो देखें भाई ये ठीक है कि नहीं। कुछ उन्होंने पैनल बिठाया, उनको बोला कि देखो भाई 160/100 ठीक है क्या? उस पैनल ने बोला नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करो कल से 140/90 कर दो। सो 140/90 जैसे स्टैंडर्ड चेंज हुआ, पूरे दुनिया में 35% न्यू पॉपुलेशन बिकेम हार्ट बीपी पेशेंट। सुबह का अखबार पढ़कर हम सब तो बीपी के पेशेंट बन गए, कल रात तक ठीक ही थे, जैसे स्टैंडर्ड लो हुआ बीपी के पेशेंट सारे के सारे बन गए, राइट? बाद में ये पता चला वो जो पैनल में जो लोग थे, एक्सपर्ट्स थे WHO के बिठाए हुए, दे वर द पेड कंसल्टेंट ऑफ दीज कंपनीज। ये कौन सी कंपनी, आप जरा गौर से इनके नाम देखिए, ये वो कंपनी है जिनकी दवाइयाँ आप लेते हैं, राइट? सो हमारा जो बीपी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर है, वो बार बार चेंज नहीं होता। 10 साल में चेंज हो गया, फिर 10 साल में चेंज हो गया, अलग अलग ऐसा नहीं होता, राइट? और ये सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात नहीं है। अगर हम डायबिटीज की बात करें, शुगर की बात करें, 1997 तक जो स्टैंडर्ड थे फास्टिंग शुगर 140। 1997 में WHO ने एक पैनल का गठन किया, उनको बोला जरा देखना है 140 ठीक है क्या? उस पैनल ने चेंज कर देनी भाई कल से इनका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर होगा, उन्हें भी हम शुगर का मरीज बना देंगे। और रातों रात हजारों लाखों नए लोग जो कल रात तक वो हेल्दी माने जाते थे, सुबह का अखबार पढ़ के आ रहे हम सब तो भाई डायबिटिक बन गए, राइट? As many as 14% न्यू पॉपुलेशन बिकेम डायबिटिक ओवरनाइट। यूं मानिए कि आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है, आपका पासिंग परसेंटेज कितना, मे बी 35%, 40%। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को सपना आया, उन्होंने ऐलान कर दिया अगले दिन से कि कल से जिस बच्चे के 80% से कम मार्क्स आएंगे वो फेल माना जाएगा। हजारों लाखों बच्चे फेल होने लगेंगे। जनरल इंप्रेशन मास में क्या किया, अरे बाप रे बच्चे कितने फेल हो रहे, कितने नालायक हो गए बच्चे। बट द रियलिटी इज द स्टैंडर्ड इज चेंज्ड, उस पर ध्यान नहीं है किसी को, राइट? एंड स्टैंडर्ड इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो, राइट? सो ये जो पैनल में जो लोग थे, डायबिटीज के पैनल के जो लोग हैं, उनके नाम है, वो 9 लोगों के नाम आप नहीं देख पाएंगे वहां से, राइट? और वो सारे कंपनी जिनके साथ ये एसोसिएटेड है, ये दैट इज देम, एंड दीज आर द वेरी कंपनी दोज हु मैन्युफैक्चर द डायबिटिक ड्रग्स, राइट? ये वो कंपनी जो दवाइयाँ डायबिटीज की बनाते हैं। आप गौर कीजिए कि ऐसा एक टाइम था 15 साल पहले, ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1997 से पहले, राइट? तब अगर किसी पूछे हाइपरटेंशन कितने लोगों को, डायबिटीज कितने लोगों को, रेयरली यू वुड हैव फाउंड एट दैट टाइम, 15 साल पहले। आज
अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, कई बार मैं बोलता हूँ, यहाँ नहीं पूछूंगा आपसे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई भी दवा लगातार नहीं चलती हो, कोई ना कोई दवा। पूरे ऑडियंस में शायद ही कोई थोड़े से लोग होंगे जो कि कॉन्फिडेंटली हाथ रेज कर सकते होंगे, राइट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? यस, आई नो देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल हेल्दी, जो अभी भी उस ट्रैप में नहीं आए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? ये एक बड़ा षड्यंत्र है। कुछ कंपनीज इंक्लूडिंग, इनमें एक नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उन्होंने पिछले 20 साल से ये काम किया कि कैसे हम स्टैंडर्ड को नीचे करें और दुनिया भर के डॉक्टर्स को हम ब्राइब करें, एजुकेट करें, राइट, सेल्स के थ्रू, कि ये स्टैंडर्ड है, अब ये स्टैंडर्ड आप और लोगों तक पहुंचाओ, आपके पेशेंट तक पहुंचाओ, जनरल मास तक पहुंचाओ, राइट। ब्लॉकेज तो है, पक्का ही है, राइट। करना क्या है, क्यों, पहले तो क्यों ब्लॉकेज है उसका मैंने हल्का सा कारण बताया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बात आप दिमाग में रखिए, आपके काम आएगी, आपके लाख रुपए बच जाएंगे। अगले दो 3 मिनट में बोलने वाला हूँ। ब्लॉकेज होती है 30%, 40% या 80%, 90%। इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? बड़ा वाला है, छोटा वाला? कौन सा खतरनाक है, कोई बताइए? बड़ा वाला। देखिए आवाज तो ना बड़े वाली की आ रही है। अंडरस्टैंड कीजिए, जो बड़ा वाला ब्लॉकेज है वो ज्यादा समय से बॉडी में है, जो छोटा वाला है वो ज्यादा समय से है। बड़ा वाला ज्यादा समय, तभी तो बड़ा वाला धीरे धीरे। जो छोटे वाले होते हैं 30%, 20% ब्लॉकेज, वो थोड़े दिन पहले वाले हैं, फ्रेजाइल है, पहली बात। दूसरी बात, दे आर प्लेंटी इन नंबर्स, खूब सारे होते हैं, राइट। तो जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं मेंटल या कोई मेंटली या फिजिकली कोई एफर्ट लेते हैं आउटस्टैंडिंगली, तो जो छोटे वाले हैं उसके फटने के चांसेस 90% ज्यादा होते हैं, 90%। दुनिया भर में देखा गया है, वर्ल्ड का अगर आप वो करें, 90% of the heart attack cases are because of 20 to 30% blockage, and 10% of the heart attack cases are because of 80 to 90% blockage. Understand कीजिए इसको जरा, राइट। अब आप बताइए, अगर आप बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं, जो प्लास्टिक के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर जो ब्लॉकेज को ठीक करने वाला है वो कौन से वाले ब्लॉकेज को ठीक करेगा? 30-40 वाले वो ठीक करेगा या 70-80-90 वाले को ठीक करेगा? 70-80, क्योंकि वो एक ही है, वो बड़ा है तो दिखाई भी दे रहा है उसके माइक्रोस्कोप से, और जो 30-40 वाले हैं वो प्लेंटी हैं, और कई बार वो उनके डायग्नोस्टिक टूल से, एंजियोग्राफी से दिखाई नहीं भी देगा, राइट। तो उसको ठीक करने का सवाल ही नहीं था। अगर आपने 80-90% ब्लॉकेज को ठीक किया भी, तो भी आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने घट गए? 10% होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, उसके लिए जो सर्जिकल वो आपने प्रोसीजर अपनाया, वो उससे कई गुना ज्यादा घातक है, ना केवल फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज। जीवन भर आप उस हॉस्पिटल के कस्टमर बन जाएंगे, आपको डिस्काउंट भी मिला करेगा। अगली बार आएंगे बोलते नहीं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप तो पुराने कस्टमर हैं। आप भी ये सोच के खुश होते मुझे डिस्काउंट मिलेगा, फिर चाहे ठीक हो ना हो, वो दिमाग में पीछे चला गया, राइट। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें तो बीमारी रहना है, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, ये बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ये प्रॉफिटेबल सर्जरीज तो है, लेकिन ये पेशेंट के लिए नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी WHO है, कॉक्रोन है, हार्वर्ड है, उसमें ऑलरेडी ये आ गया है। 2006 में इन दोनों सर्जरी को ऑब्सोलीट बता दिया था। ऑब्सोलीट मतलब कि इसको प्रयोग में ना लाया जाए। लेकिन डॉक्टर भी क्या करे, 40% जो हॉस्पिटल जहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, 40% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दीज 2 सर्जरीज, एंड 60% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बाकी और सारी चीजें। जिस दिन ये दोनों सर्जरी बंद कर दिया हॉस्पिटल ने, उस दिन उनका जो इकोनॉमिक से वो क्रैश हो गया। दैट इज द प्रॉब्लम विद देम। सो माय सिंपैथी इज देयर विद देम ऑल्दो, राइट। लेकिन एक बात में ध्यान रखना पड़ेगा, 19% तक पेशेंट बेगुनाह गुलाम नहीं होना है। सो इसको समझने के लिए थोड़ा आई गिव यू वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। कोलेस्ट्रॉल। 1953 से पहले किसी को कोलेस्ट्रॉल की कोई बीमारी नहीं थी। 1953 से पहले ये जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आई कहां से, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइंस है। बीमारी को बनाने की एक इन्वेंशन की एक कला, इसे कहते हैं डिजीज मॉन्जरिंग। 1895 की बात है, एक सर्जन थे, उनका नाम था जोसेफ लिस्टर। उनकी एक कंपनी थी, फ्लोर क्लीनर की कंपनी, और साथ में सर्जरी भी करते थे। सर्जरी का धंधा भी नहीं चलता और फ्लोर क्लीनर का तो बिल्कुल नहीं चलता। उन्होंने क्या किया, फ्लोर क्लीनर में जो बनाते थे उसको उन्होंने डाइल्यूट करके बोतल में डाला, माउथ क्लीनर बना दिया।
और ये उन्होंने प्रमोट किया, इसको अगर आप कुल्ला करेंगे तो आपकी मुंह की बदबू हट जाएगी, कुल्ला करेंगे मुंह की बदबू हटाइए। 5 साल उन्होंने प्रमोट किया, पब्लिसिटी की, नोबडी इंटरेस्टेड। मुंह की बीमारी कोई बीमारी तो थी नहीं उस वक्त। उनके दिमाग में बात आई 2002 या 3 में, 1902 या 3 में, कि इस बीमारी का नाम रखा जाए। उन्होंने नाम रखा हेलिटॉक्सिस, और डॉक्टर ने लिखना शुरू कर दिया, आपको हेलिटॉक्सिस है, आपको दवा ये लेनी चाहिए। और उन्होंने अपना वो जो प्रोडक्ट है उनका नाम, उस प्रोडक्ट का नाम है अपने नाम से रखा, डॉक्टर लिस्टर ने लिस्ट्रीन। नाम सुना आपने? जिन लोग स्माइल कर रहे हैं वो सब यूज करते हैं। सो लिस्ट्रीन, और उन्होंने ये प्रमोट कर दिया, लिस्ट्रीन नहीं लेंगे तो हेलिटॉक्सिस हो जाएगा, आपको हेलिटॉक्सिस हुआ है, लिस्ट्रीन लेना। जैसे डॉक्टर बोला यू आर सफरिंग फ्रॉम हेलिटॉक्सिस, बताओ क्या करना है, राइट। सो मुंह की बदबू कोई बीमारी नहीं है, हेलिटॉक्सिस बड़ी बीमारी है, जबकि दोनों सेम ही चीज है, राइट। तो आप देखिए तब से लिस्ट्रीन और आज भी लिस्ट्रीन, जबकि इन रियलिटी वो मुंह की बदबू भी नहीं दूर करता, वो आपके दिमाग के जो अंदर एक है सेटिस्फैक्शन उसको जरूर ठीक करता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड डिजीज मॉन्जनिंग, एक बीमारी को इन्वेंट करना। ये पद्धति तब शुरू की थी उन्होंने, और आज उसके बाद कई सारी बीमारी इन्वेंट हुई, उनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने प्रूव कर दिया दुनिया में कि जिनके बॉडी में ज्यादा फैट जाता है वो ज्यादा वो हार्ट डिजीज होता है। मोर कोलेस्ट्रॉल मोर हार्ट डिजीज। 1953 में ये हो गया कि कोलेस्ट्रॉल कम करो, बीमारी कम करो, हार्ट डिजीज कम करो। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, स्टैटिन वगैरह लो। WHO ने देखा कि जो लोग, 2 लोग हैं, दोनों की कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, एक ने स्टैटिन लिया कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, एक ने नहीं लिया। पूरे दुनिया में ये देखा गया कि जिन लोगों ने स्टैटिन लिया यानी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लिया, उनका कोलेस्ट्रॉल तो घट गया, लेकिन उनके मृत्यु के चांसेस 47% बढ़ गए, 47% बढ़ गए। WHO ने 1980 में फैसला किया, हम ऐलान कर देंगे कि कोलेस्ट्रॉल को घटाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तब तक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयां और कोलेस्ट्रॉल का बिजनेस $200 बिलियन का बन गया। $200 बिलियन बहुत होते हैं, राइट, और वो बहुत ताकतवर होता है। तो वो $200 बिलियन काफी थे WHO के मुंह बंद करने को, भाई ये क्यों कर रहे हो, हमारे पेट में क्यों लात मार रहे हो, चलने दो इसको, राइट। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। अब रियलिटी क्या है कोलेस्ट्रॉल की, आप जरा ध्यान समझिए। आपको ये सबको पता है HDL LDL, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, इसलिए साइंस स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट स्टूडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। अब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको घटाने की बात हम करते हैं या डॉक्टर करते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। इनमें से जो स्मॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है वही ऐसे हैं जो आपके पाइप यानी कि आर्टरीज के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसको छेद करके निकल सकते हैं। इन रियलिटी LDL जो स्मॉल वाला है दैट इज गोइंग टू मेक यू हार्म, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे जिनको पता होगा कि आपके LDL स्मॉल वाला कितना है, लार्ज वाला कितना है? पूरे देश में कोई एक भी आदमी नहीं होगा जो ये बोल सके मेरा LDL, ये तो सब बोल देंगे मेरा LDL कितना है, HDL कितना है, पर LDL में स्मॉल कौन सा है, कितना है, लार्ज कौन सा है, कोई बोल सकता है? क्योंकि वो जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फॉर कोलेस्ट्रॉल, राइट, वो इंडिया में भी आई नहीं, वो आएगी 6 महीने बाद, साल लग जाएंगे। जब वो आएगी तब ये प्रचार होगा, अरे आपका स्मॉल कितना है, जैसे आप बोलते हैं आपका LDL कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना, बैड कोलेस्ट्रॉल। याद कीजिए आपसे 20 साल पहले 10 साल पहले गुड बैड नहीं था, हाई था कोलेस्ट्रॉल या नहीं कोलेस्ट्रॉल था। अब आने वाला है स्मॉल वाला कितना है, लार्ज वाला कितना है। अच्छा इसमें कितना खर्चा लग जाएगा, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का खर्चा लगेगा 12,000 कम से कम एक बार डायग्नोस करने का, वो हर महीने चेंज भी होगा, हर महीने करना है, तो 12,000 तो बचा लीजिए आप हर महीने के लिए, राइट। सो इसका मतलब ये है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग आप में से ले रहे हैं वो अंधेरे में तीर चलाने की तरह है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, हो सकता है आपका लार्ज वाला ज्यादा हो और वो तो बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। अब जो दवा ले रहे हैं वो क्या कर रही है, राइट, जो स्टैटिन है, दुनिया में आपको बहुत ही अमेज्ड होगा जान के कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग दुनिया में बनी ही नहीं है अब तक। अरे ये कैसे, जो हम दवाई ले रहे हैं वो तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग ही तो है। मैं आपको समझाता हूं, उसका नाम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग इन रियलिटी है नहीं। कैसे? जो स्टैटिन है, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, वो क्या करता है, जब आप लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को घटाता नहीं है, एक और केमिकल, एक और एंजाइम को घटाता है, उसका नाम है CoQ10। आप में से काफी लोगों को पता होगा CoQ10 क्या करता है। उसके कई सारे काम है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते रहना, स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि हार्ट की मसल हर पल काम करता है, सबसे ज्यादा वही काम करता है।
हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देता है एक एंजाइम, एक केमिकल जो बॉडी बनाती है, दैट इज कॉल्ड CoQ10, राइट, दैट स्ट्रेंथन योर हार्ट मसल, राइट। लेकिन वो जो CoQ10 है, इसका एक और बाई प्रोडक्ट काम है, एक और काम है, वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के बनाने के असेंबली लाइन में वहां भी हाथ बटाता है, राइट। अब जब आप कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग लेते हैं, वो CoQ10 को कम कर देता है। CoQ10 को कम करेगा तो CoQ10 कोलेस्ट्रॉल बनाने में हाथ ठीक से बटा नहीं पाएगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल घट जाएगी। बट एक और चीज हो जाएगी, CoQ10 कम होगा और तो क्या एक और चीज हो जाएगी, हार्ट कमजोर होने लगेगा। इसीलिए आप गौर करेंगे जितने लोग कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग लेते हैं, विद इन 2 years दे बिकम हार्ट पेशेंट एज वेल, राइट। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये FDA का वार्निंग है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। अगर आप कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग लेंगे 18 महीने तक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन इम्पोर्टेंसी और लिवर डैमेज विद इन 1 to 8 weeks। मेरे पास एक पेशेंट आए, सर आप क्या बात करते हैं, हमें तो 2 साल हो गए, मेरा तो लिवर डैमेज नहीं हुआ। लीवर की दिक्कत क्या है आपके और मेरे लीवर की, जब तक वो 80% डैमेज नहीं हो जाएगा, पहला सिम्टम आपको नहीं फील होगा। एंड द मोमेंट यू फील द फर्स्ट सिम्टम, दैट मीन्स दैट 80% डैमेज ऑलरेडी हैपेंड, राइट। सब्सटेंशियल इतना हो गया कि अब वो रिवर्स होना काफी मुश्किल होगा। सो व्हाट आई मीन टू से, द मोमेंट यू टेक द ड्रग, दिस थिंग हैपन एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड थिंग्स एंड यू फेस इट एवरी डे, राइट। आप इसको फेस करते रहते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स की जो साइकोलॉजी कुछ ऐसी है, आपके घर में जो पानी है वहाँ लीक कर रहा है, बाथरूम का पानी, इमेजिन कीजिए आपने प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने क्या किया, आपके पानी का जो सप्लाई है वो काट दिया, देखो लीक कर रहा है, नहीं लीक कर रहा है, तो ठीक हो गया ना, राइट। व्हाट आई मीन टू से, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, वो कोलेस्ट्रॉल की गलती नहीं है। अगर आपके बाथरूम में पानी लीक करता है तो पानी की गलती नहीं है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वो लीक का कारण क्या, उसको ढूंढ के उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो क्या कर रहे हैं, इनका भाई सप्लाई काट दो, पानी भी नहीं आएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसे कुछ ना, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ, दैट इज द प्रॉब्लम कि आपके बॉडी के जो आर्टरीज हैं, इनर लाइनिंग है, दैट इज स्टिकी। सिंस दैट इज स्टिकी, तो जो कोलेस्ट्रॉल वहां से ट्रेवल कर रहा है, इट विल गेट स्टिक। तो रादर देन कि हम ये करें कि स्टिकीनेस को कम कैसे करें, उसकी दवाई कुछ हो तो बताओ, हम कोलेस्ट्रॉल को ही कम कर देते हैं। जैसे प्लम्बर ये नहीं ढूंढ पा रहे कि कहाँ पे लीक है, तो चलो भाई इसका तो सप्लाई बंद कर दो, फिर बोलेंगे हमें पानी कहाँ से मिलेगा, आप आउटसोर्स करो, वो विटामिन की टैबलेट कैप्सूल वगैरह देते नहीं ऊपर से, आपको तो लेना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया किस तरह से बीमारी होती है और किस तरह से हम चुंगल में फंसते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कम आउट ऑफ द होल थिंग। कोलेस्ट्रॉल की तरह हर साल दुनिया में नई नई बीमारियां इन्वेंट की जाती हैं और हर साल उसका एक डायरेक्टरी बनती है जो पूरे डॉक्टर्स में जाती है। मेरे पास भी आती है, मेरे पास थोड़ा पहले आ जाता है, तो ताकि मैं आपको बता पाऊँ, उस तरह के नेटवर्क मैंने बनाए हैं, राइट। अभी पिछले साल कुछ नई बीमारियां आई थी, राइट। उनमें से एक बीमारी इन्वेंट की गई थी, नई बीमारियां, राइट। उनमें से एक बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव शॉपिंग सिंड्रोम। ऐसे लोग जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बीमारी, उसकी एक दवा भी आई है, किसी को चाहिए तो बताना, उसको वो दवा दे देंगे, 2-4 दिन तो नहीं वो शॉपिंग करेगा। फिर एक और बीमारी आया है, एक्सेसिव इंटरनेट डिसऑर्डर। बार बार क्या है मेल, देखो जरा 2 मिनट में क्या है मेल, उनके लिए भी दवा आई है, किसी को चाहिए तो बताना होगी। What I mean to say, ह्यूमन बिहेवियर को एक नाम दे दिया गया और उसको बीमारी का टैग दे दिया गया और उसको एक डॉक्यूमेंट करके, राइट, एक ऑफिशियल एक सर्कुलर बना दिया गया, एंड नाउ वी आर चेजिंग दैट फिगर कि हमें तो वो बनना है, राइट। जबकि इन रियलिटी ये सब तो कोई बीमारी ही नहीं है, राइट। सो इंसान, मैंने आपको बताया था, 16,000 तरह से बीमार पड़ सकता है, 16,000 टाइप हो गया, एज मनी एज दैट। तो बीमारी की बात ना करके हम ये बात करें कि हम कैसे बिना किसी दवाई के हेल्दी रहें, और अगर हम बीमार हैं तो कैसे उस चुंगल से बाहर आ जाएं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये सोल्यूशन की बात बता रहा हूँ, अब तक से प्रॉब्लम की बात बता रहा था। सोल्यूशन ये 1970 की बात है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर चाओ इन ले, उनको डॉक्टर ने बोला यू आर डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर। चाओ इन ले ने पूछा मुझे लंग कैंसर कैसे हो गया, हाउ आई सफर फ्रॉम लंग कैंसर।
चाओ इन ले को डॉक्टर ने बताया कि हो जाता है, पोल्यूशन है, जीन्स हैं, केमिकल हैं। आप गौर करेंगे जब भी डॉक्टर कोई जवाब देंगे तो जवाब ऐसे होंगे जो हमारे हाथ में बस में नहीं होंगे, राइट? जो चीज़ बस में होगा उसके बारे में भी बताएंगे। बट चाओ इन ले ने सोचा जब तक कि मुझे ये ना पता चले मैं बीमार कैसे हूँ तब तक मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा। चाओ इन ले ने क्या किया, पूरे चाइना से 6.5 लाख वर्कर को इकट्ठे किए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, उनकी मदद ली और एक अभियान चलाया, उसका नाम दिया गया द चाइना स्टडी। इस अभियान में मेन मकसद था ढूंढो इंसान बीमार क्यों पड़ता है और ढूंढो क्या करने से इंसान ठीक हो सकता है। तब यह देखा गया दुनिया भर में कि एज मेनी एज 7 ऐसी दुनिया में जगह है। इंडिया में एक जगह है हुंजा, चाइना में एक जगह है बामा, जापान में एक जगह है ओकिनावा। ऐसे 7 जगह है इंडिया में कम से कम दुनिया में जहां पे लोग बीमार ही नहीं पड़ते, 100 साल जिंदा रहते हैं। वहां जाएंगे तो वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई दुकानें नहीं है दवाइयों की। अगर आपको कोई दोस्त डॉक्टर है वो सोचे कि मैं इनमें से किसी जगह जाकर अपना धंधा जमाता हूं तो भूखे मर जाएंगे, एक भी पेशेंट नहीं मिलने वाला वहां। सो चाइना स्टडी के लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया इन लोगों को, इंक्लूडिंग हुंजा इंडियन, और पाया इन 7 सिविलाइजेशंस में एक बात कॉमन है, एंड दैट इज उनके खाने पीने के पैटर्न है। उन्होंने इस पैटर्न को डॉक्यूमेंट किया और देखा कि इस पैटर्न में अगर कोई रह जाए, जो कि बड़ा सिंपल है अदरवाइज, तो बीमार ही नहीं पड़ सकता, राइट? ही विल बी इम्यून टू डिजीज, बीमार हो ही नहीं सकता। सो दैट वाज वन ग्रेट अचीवमेंट फॉर मेडिकल साइंस कि एक ऐसा पैटर्न का आविष्कार हो गया या डिस्कवरी हो गई कि उसमें कोई भी रहेगा तो ये गारंटी है बीमार नहीं पड़ेगा। इन दिनों एक और चीज हुआ, पिछले दिनों, पिछले कुछ सेंचुरीज में 2 भाई थे, हुंजा इंडियन एंड पीमा इंडियन। ये कोई स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। 2 सिविलाइजेशन थे, हुंजा इंडियन, पीमा इंडियन, और दोनों दुनिया में वर्ल्ड के हेल्थीएस्ट सिविलाइजेशन में से गिने जाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के आसपास पीमा इंडियन ने सोचा कि हम हुंजा के साथ नहीं रहा करेंगे, विल नॉट स्टे विद हुंजा इंडियंस, हम इनसे दूर चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, बसेंगे, अरिजोना के पास वो बस गए। लेकिन तब भी उनका वही सारा कुछ सिस्टम था जो उन्होंने पहले किया हुआ था, द सेम सिस्टम दे यूज्ड टू फॉलो, राइट? उनका वही खाना था, वही खेती बाड़ी करते थे। 1960 तक पीमा इंडियन दे वेर हेल्दी। 1960 में यूएसए की सरकार ने पीमा इंडियन को बोला अपना जमीन वगैरह हमें दे दो, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, बदले में आपको पूरे जीवन भर खिलाएंगे बिठा के, आपके आने वाले जनरेशन को हम जॉब भी देंगे, खिलाएंगे भी। तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया। तो पीमा इंडियन को लगा ये अच्छा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, राइट? उन्होंने मान लिया और खाने पीने के नाम पे यूएस की सरकार ने पीमा इंडियन को पैक्ड फूड देना शुरू कर दिया, वही जो आप खाते, नूडल, मैगी, बर्गर, सर्वर, वो देना शुरू किया। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर, पीमा इंडियन अकॉर्डिंग टू WHO बिकेम द मोस्ट सिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी गूगल में टाइप करेंगे दुनिया के सबसे बीमार लोग तो पीमा इंडियन आ जाएगा, राइट? वहां पे हर इंसान पेशेंट है, हर इंसान पेशेंट है, एवरीबडी इज सिक, एवरीबडी इज डिजीज्ड, पीमा इंडियन, राइट? सो चाइना स्टडी के लोगों ने क्या किया, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, जैसे दुनिया के बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की भी क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई जब उनको पता चला कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी बीमार हैं, किडनी स्टोन है, ट्यूमर है, कैंसर है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, मोटापा सबसे ज्यादा है, राइट? सो आज भी 50% ऑफ द पीमा इंडियन अकॉर्डिंग टू WHO बेनिफिटेड। 2012 में इसका खुलासा हुआ, अमेरिकन कोर्ट ने इस बात को साबित किया और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को बिगेस्ट हेल्थ फ्रॉड सेटलमेंट के लिए $3 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा 2012। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ये कोई इमेजिनेड एग्जाम्पल नहीं है, ये साबित किया एग्जाम्पल है। और 2012 2 जुलाई के जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो पेपर्स हैं, इट इज देयर, वहाँ से वो पेपर एक बार फ्रॉम देयर ओनली यू कैन शो इट, राइट? अंदर, हाँ, यस, ओके, या, थैंक यू, कीप इट अगेन। सो बाद में आप देख सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स। सो ये कोर्ट के ऑर्डर, और ये 2012 में यूएस की कोर्ट ने पकड़ा, 2013 में चाइना की कोर्ट ने ये पकड़ा, 2014 में अभी, राइट, पोलैंड के कोर्ट ने इस बात को पकड़ा, स्मिथक्लाइन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, टॉप 10 कंपनीज। आप चाहे तो गूगल आजकल के तारीख में गूगल से आप देख ही सकते हैं सारा कुछ, राइट? यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर्स।
आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे हेल्थ के लिए वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल, वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। आजकल आप देखेंगे सबसे बड़ा बिजनेस है दवाइयों का बिजनेस। कितना बड़ा बिजनेस है? केमिस्ट के शॉप खुलते हैं, बंद होते हुए नहीं देखे होंगे। आज देखिए जो भी मार्केट से आप आए उस मार्केट में गिन लीजिए टोटल शॉप, इट इज 4 to 5 शॉप का केमिस्ट शॉप। अगर इतनी छोटी बूथ थी 6 महीने बाद वो डबल बूथ हो जाती है। सर्वोदय हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसमें जो केमिस्ट का बूथ है, एक बूथ अगर आप लेना चाहेंगे, सिक्योरिटी है 1 साल की 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी से, किराया नहीं बोल रहा हूँ, राइट, 2 करोड़। आजकल डॉक्टर इतने मजबूर हो गए, कई सारे डॉक्टर्स हैं आपके जाने पहचाने जिन्होंने अपनी अपनी दवाई कंपनी खोल ली है, अपनी कंपनी, राइट। दे स्टार्टेड देयर ओन कंपनीज इंक्लूडिंग मेट्रो में SS बंसल। उनकी जितनी भी, अगर आप में से कोई पेशेंट है, वो एवेंचर फार्मास्यूटिकल्स जो कि उनकी कंपनी है, 10 में से 8 गोलियां उन्हीं कंपनी की होगी, राइट। सो इट इज़ लाइक दैट, यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। वैसे भी दुनिया भर में भी देखा गया है कि जब जब डॉक्टरों ने स्ट्राइक की है, मृत्यु दर न जाने कैसे अपने आप कम हो गई है। According to Oxford Journal, mortality rate goes down whenever doctors go on strike. दुनिया भर में, इंडिया में भी आपको याद होगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक स्ट्राइक हो गए थे डॉक्टरों के, याद है आपको? अभी, राइट, हम हड़ताल कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे। कानपुर से स्ट्राइक शुरू हुआ। करीब 84 हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम मिला के स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया। एम्स ने भी बाद में पार्टिसिपेट किया था। और अखबार में लगा 30 लोग मर गए, 30 लोग मर गए, 30 लोग मर गए। जब तो स्ट्राइक था तब 5 दिन में 84 या 83 हॉस्पिटल में 30 लोग मर गए, और अब जब स्ट्राइक नहीं है तो उसी 5 दिन में उतने हॉस्पिटल में 1500 लोग मरते हैं, 1500 लोग मरते हैं। कभी भी जाके देखिए, खुला चैलेंज, राइट, 1500, राइट। तो दवाइयों के बिना जितने लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज्यादा लोग दवाइयों के साथ मरते हैं, राइट। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। आई स्ट्रांगली फील 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। सो वी हैव टू टुगेदर कम आउट ऑफ इट। हम सभी को इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और आज का एंड ऑफ इलनेस का जो प्रोग्राम है इसी सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए है। तो एक सवाल आता है, तो क्या कल से हम दवा ना खाएं, छोड़ दें? अब आप छोड़ नहीं सकते। बॉडी का एक बड़ा सिंपल साइंस है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट साइंस। क्यों नहीं छोड़ सकते? मान लो किसी को इंसुलिन चढ़ा हुआ है, इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं, और तो क्या करता है बॉडी देखता है ये तो आउटसोर्स कर ही रहा है, बाहर से आ रहा है, तो बॉडी आलसी है, अपना मैकेनिज्म स्विच ऑफ कर देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं, नींद आने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई स्लीपिंग पिल्स यूं ही देता रहता है टॉफी की तरह। अचानक अगर देना बंद कर दे तो आपको एक्चुअली नींद नहीं आएगी। मान लो आपको डिप्रेशन नहीं है, यू आर नॉट डिप्रेस्ड पर्सन, बट अननोइंगली यू आर कंज्यूमिंग एंटी डिप्रेसिंग टैबलेट्स। कुछ दिन बाद अगर दवा नहीं लेंगे बाई चांस, तो एक्चुअली यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। तो आपकी बॉडी जो है, इट बिकम्स ड्रग डिपेंडेंट। When you give the body a particular drug for a particular brief period of time, for the lifetime you become drug dependent. That is one important interesting thing about the drug. We must understand. अगर कोई दवाई आपकी चल रही है, BP की चल रही है, डायबिटिक चल रही है, कोलेस्ट्रॉल, तो एक झटके में आप उसको छोड़ने का जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, right? How to free yourself from drugs, how to free yourself from disease, and how to free yourself from doctors as well, right? That I am going to say. What I mean to say, the warning is, अचानक एक दिन छोड़ दिया, दैट कैन बी डेडली। इसलिए नहीं कि दवा आपको हेल्प कर रही है जीने में, बट इसलिए कि बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म सिस्टम भी है, वो डिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है, इमेजिन कीजिए मैं टेबल को पकड़ के खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ उसके सहारे से, बिना मुझे वार्निंग दिए कोई अगर टेबल खींच ले, देयर इज अ चांस कि मैं एकदम गिर पड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पैर में शक्ति नहीं है कि मैं अपने आप में खड़ा हो सकूँ, इसका मतलब ये है कि मैं निर्भर हो गया था उस पर, और अचानक उसको बिना वार्निंग दिए किसी ने खींच लिया। तो बॉडी को बताना पड़ेगा आपको कि भाई आज से डायबिटीज की दवाई लेना मैं बंद करने वाला हूँ, पहले आपको वार्निंग देनी पड़ेगी। तो आपका जो ब्रेन है वैभव की ब्रेन की तरह उसको अंडरस्टैंड करेगा, राइट, एंड देन गो स्टार्ट द प्रोसेस। बट हाउ टू डू इट, ये कैसे करना है, राइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। यही हम यहाँ पे आज समझने चाहते हैं, राइट। इस आज के इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि we should be free of all the drugs,
राइट, वी शुड बी फ्री ऑफ ऑल द ड्रग्स। इंसान 16,000 तरह से बीमार पड़ता है, 16,000 तरह से। ऐसी बीमारियां जो बाकी एनिमल को कभी नहीं होती। इंसान एक ऐसा जानवर है जो बीमारी से मरता है। कभी सुना आपने बिल्ली हार्ट अटैक से मर गई? अनयूजुअल। शर्मा जी हार्ट से चल बसे, ये एक्सेप्टेबल है। हम शर्मा जी साहब कल मिले थे, बड़े हेल्दी लग रहे थे, बट इट एक्सेप्टेबल, राइट। फरवरी की बात है, ऐसे ही एक मेरा लेक्चर था, ये तो सिर्फ 1-8 घंटे का है, वो तो 6 दिन का था, रोज 4 घंटे हेल्थ वर्कशॉप। बारामती एक शहर है, वहाँ पे वसंतराव साठे ऑडिटोरियम है, नाट्यगृह। इसी तरह से सैटरडे का दिन था सुबह का, और जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था साथ में एक प्लेग्राउंड था, वहाँ से शोर आ रही थी। जितनी बार वहाँ पे क्रिकेट मैच का छक्का लगता, एक गाना वो ऑन कर देते और बड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रहा। मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा भाई ये कब तक चलेगा? उन्होंने बोला कि 6 दिन तक चलेगा। मैं समझ गया कि अगले 5 दिन भी इनको झेलना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन संडे था, 2 फरवरी की, व्हेन आई केम आई रियलाइज देयर वाज अ पिन ऑफ साइलेंस। कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा। मैंने पूछा कि वो क्या हुआ 6 दिन का? अभी तो 1 ही दिन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि बारामती टाइगर्स एंड पुणे रॉयल्स के बीच में मैच चल रहा था, बड़ा प्लेग्राउंड था। उसमें बारामती टाइगर दे वन द मैच, वो क्रिकेट मैच जीत गए। उसमें जो मैन ऑफ द मैच मिला मिस्टर राज, राइट, मैन ऑफ द मैच मिस्टर राज को मिला। मैन ऑफ द मैच जब मिला, वो लेके इतने खुश हुए, एक्साइटमेंट में ऑन द ग्राउंड उनका हार्ट अटैक आ गया, ही डाइड, मृत्यु हो गई। क्योंकि मैं उस शहर में था, मेरी इच्छा हुई जानने की कैसे हुआ, क्या हुआ। आई वेंट डीप इनसाइड, राइट। मैं उनके घर वालों से मिला, उनके परिवार में उनकी वाइफ थी, बच्चा था, राइट, सारा हंसता खेलता परिवार। तो मैंने पाया कि वो जीवन भर वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे थे। 31 ईयर्स उनकी उम्र थी। उनके वीडियो से पता चलता है, और क्योंकि वो क्रिकेट खिलाड़ी थे, वो बड़े हेल्थी थे, बड़े फिट थे, राइट। सो कभी कोई नशा, कभी शराब या नॉनवेज कुछ भी नहीं था। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। एटलीस्ट दिखने में इतने हेल्दी थे, शायद हम में से शायद ही कोई उससे मैच कर पाता होगा। What I mean to say, we cannot take health for granted, right? तो लेकिन ये हुआ कैसे, पहली बात। और क्या हम ऐसे अनफोर्सीन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं? क्या कोई तैयारी कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन का पहला जवाब ये हुआ कैसे। फिर आज हम क्या करें ताकि वो नौबत हमारे साथ तो ना आए, राइट। तो कैसे हुआ ये बताना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी गाड़ी खुद की नहीं चोरी होती, हमें लगता है कि चोरी तो किसी और की गाड़ी होती होगी। और एक बार हमारी कोई चीज़ गुम होती है तो दिमाग में आता है एक बार मिल जाए, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, राइट। तो वो अगली बार ही आई ये बात, राइट। तो आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। ये बात ज़रा ध्यान सुनिए, बिकॉज ये आपको अप्लाई करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आपका जो बॉडी है, मेरा जो बॉडी है, इसमें पाइप्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसे आपके शहर में पानी के नीचे पाइप्स हैं जिसके थ्रू हर घर में पानी जाता है। इमेजिन कीजिए हर घर जो है वो अपने आप में बॉडी के हर सेल्स जहाँ पानी पहुँचता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर है पूरे शहर में जहाँ पानी तो टंकी मेन से तो पानी आ रहा है लेकिन उस घर में नहीं पहुँच रहा, तो कारण क्या होगा? उस घर वाला जो रास्ते वाला पाइप है उसके बीच में कोई ना कोई ब्लॉकेज होगा, राइट। लेकिन कौन से वाले घर में, यहाँ पे मान लो 10,000 घर हैं फरीदाबाद में या 50,000 घर हैं, कौन से वाले घर में और कौन से वाले पाइप में ब्लॉक होगा अभी आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि एक्चुअली ब्लॉक ना हो जाए। ये तो समझते हैं, राइट। सो लेकिन अब इमेजिन कीजिए जिस घर में ब्लॉक है वो आप ही का घर है। अब इमेजिन कीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपको, राइट। अगर पानी नहीं आ रहा तो व्हाट ऑल प्रॉब्लम यू कैन फेस। नाउ यू कैन एसोसिएट आपके बॉडी में भी 100 बिलियन सेल्स हैं। एक सेल एक घर की तरह है, और जैसे वो पानी आता है तो वो ब्लड जहाँ नहीं पहुँचेगा तो ब्लड की नहीं पहुँचने से न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। इवन हम पानी से और क्या करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, धोते हैं घर को, राइट। वो सारी चीज़ें उस वाले सेल्स को यानी कि उस वाले घर को नहीं मिलेगी। तो वो वाला सेल यानी कि वो वाला घर इट विल स्टार्ट डाइंग, राइट। लेकिन वो घर कौन सा वाला हो सकता है, क्या कोई बता सकता है? अगर वो वाला घर बॉडी के किसी भी पार्ट में होगा आपको कैसे पता चलेगा? उस पार्ट में दर्द होना शुरू कर हो जाएगा, राइट। बट इफ वो वाला घर हैपेंस टू बी योर हार्ट तो दर्द नहीं होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, राइट। तो वो कहीं भी हो सकता है। इफ इट इज हैपेंस टू बी योर ब्रेन तो ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक आने से क्या
कि बॉडी का आधा हिस्सा काम करना बंद, एक हाथ नहीं काम करेगा, एक पैर नहीं काम करेगा, आधा राइट जीभ नहीं काम करेगा, राइट। सो तो इसलिए ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हमें ज़्यादा तंग करते हैं बिकॉज उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉडी किसी और का। तो जो ब्लॉकेज है इट कैन बी एनीवेयर इन द बॉडी, जैसे पूरे जो फरीदाबाद के जो पाइप सिस्टम है कहीं ब्लॉकेज हो सकता है किसी घर में, लेकिन अब वो मंत्री के घर में हो गया, सॉरी तो अखबार के थ्रू सबको पता चल जाएगा, राइट। आपके मेरे घर में हुआ तो नहीं भी पता चलेगा, काम चला देंगे, राइट। तो ठीक उसी तरह से कि अगर वो मंत्री हार्ट है या ब्रेन पता चलेगा, अगर होगा तो वो हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, राइट, बॉडी के केस में। अब ब्लॉकेज क्यों होता है और क्या हम करें ब्लॉकेज ना हो, ये दोनों चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों चीज़ कोई बताएगा नहीं आपको, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। मैं देखता हूँ, मेरे पास लिस्ट है, राइट। इंडिया के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अबाउट 70% कार्डियोलॉजिस्ट का डेथ का कारण है हार्ट अटैक। वो खुद ही उनके, राइट, जो जिसका इलाज करते हैं उसी से उनकी डेथ हो रही है, तो वो आपको क्या क्या इलाज करेंगे। ब्लॉकेज का मेन कारण दुनिया भर में मैंने जहाँ मैं गया हूँ, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन, वियतनाम मेडिकल एसोसिएशन, आबू धाबी मेडिकल, हर जगह मैंने जो देखा है ब्लॉकेज का मेन कारण अमंग इंडियंस, आप याद रखिए पूरे दुनिया में 60% जो हार्ट डिजीज है वो भारतीयों में होते हैं और बाकी 40% पूरे दुनिया के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई रिपीट, WHO का रिपोर्ट कहता है अगर 100 लोग हार्ट अटैक से आज मरते हैं, 100 में से 60 लोग भारतीय हैं और 40 लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। तो हम लोग कुछ तो खास करते होंगे। व्हाट इज दैट? ब्लॉकेज का मेन कारण है, द मेन रीजन ऑफ द ब्लॉकेज इज आपके जो आर्टरीज हैं, आपके मेरे हमारे आर्टरीज हैं, आर्टरीज के इनर लाइनिंग जो है वो चिपचिपा हो जाती है थोड़े दिन में, राइट। इज देयर अ ट्रेल, दैट ट्रेल विद द सॉइल, नो सॉइल, अच्छा वो बीज तो होगी वहाँ से। सो ये कैसे काम करता है ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं वैसे, राइट। सीड्स दे दो। Now, try to understand this. Take it out. Try to understand आपके अंदर के आर्टरीज के वॉल्स हैं। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और ठीक है, थैंक यू। ये मान लो मेरे पास कुछ बीज है, राइट, दिस सम सीड्स आर देयर, इट इज़ वेरी फर्टाइल सीड्स। इसको पत्थर के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ तो क्या ये उगेगा, ग्रो होगा? नहीं होगा, राइट, इट विल नॉट ग्रो। बट यही बीज को अगर मैं एक मिट्टी और उपजाऊ उसके ऊपर छोड़ देता हूँ, राइट, ये फर्टाइल सॉइल है और इसको गीला है ये, और अब मैं इसके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसके अंदर चला जाता है, तो क्या होगी? इट विल ग्रो, राइट। तो ये सीड्स पे निर्भर नहीं करता है कि ये उगेगा कि नहीं उगेगा, पार्शली निर्भर करता है, ये इसके सराउंडिंग पे भी निर्भर करता है। एक बात याद रखिए, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है या डायबिटीज है, द फर्स्ट रीजन ऑफ दैट इज कि आपकी जो इनर वॉल है वो स्टिकी है। स्टिकी मतलब वहां पे कोई चीज जब ग्रो करती है तो वो चिपक जाता है, राइट। चिपकने से पहली चीज होगी कि वहां पे अगर चिपकेगा तो वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा। अच्छा, क्या चिपकता है? कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो फ्लो करता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह की कोई चीज चिपक सकती है, राइट। कितना परसेंटेज चिपकेगा वो आपको कई सारे फैक्टर पे फिर निर्भर करते हैं। लेकिन जहां पे वो चिपक रहा है वो वाला जो ऑर्गन है, इफ इट हैपेंस टू बी पेनक्रियास, ही मे सफर फ्रॉम डायबिटीज, राइट। सो इफ इट हैपेंस टू बी द अदर इंपॉर्टेंट मसल्स, इट कैन बी आर्थराइटिस। इफ इट हैपेंस टू बी हार्ट, इट कैन बी हार्ट डिजीज। इट ऑल डिपेंड्स कि वो जो चिपकने का कहाँ पे ज्यादा चिपका, कहाँ पे कम चिपका, कहाँ पे ज्यादा ब्लॉकेज है। आपने कई बार देखा होगा कि एक जगह तो पानी आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, राइट। तो वही है, वही हिसाब आप लगा लीजिए। नाउ वो चिपचिपा कैसे होता है? चिपचिपा होने का एक ही कारण है, द काइंड ऑफ फूड विच वी कीप ऑन ईटिंग, जो खाना हम खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाला खाना जो हम खाते हैं वो हम ही खाते हैं, दुनिया में कोई और नहीं खाता है। चिपकने का जो पहला कारण है वो है एनीथिंग व्हेन यू ईट टू मच इन रिफाइंड फॉर्म, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, सपोला वोला जो होता है ना, राइट, सनफ्लावर, ये सब, राइट, वो चीज़ें जब हम खाएंगे तो चिपचिपा होगा। आप देखते नहीं, बर्तन आप धोते हैं, एक में सैलड रखा हुआ है, एक में आपके तड़के लगा हुआ, वो बटर पनीर मसाला लगा हुआ है,
सैलेड वाले बर्तन को बेशक ना भी धोएंगे, उसको तो रगड़ रगड़ धोना पड़ता है। यहाँ तो आपका हाथ पहुँच रहा है, अंदर की आर्टरीज में थोड़ी ना पहुँच रहा है, राइट। गॉड को थोड़ी ना पता था कि भाई आप में आर्टरीज को गंदा कर देंगे तो कोई इंसान करता गॉड आपके लिए कि अंदर तक हाथ पहुँचा के, राइट। कोई मेड लगा दे वो रोज़ धोता रहे, राइट। सो दैट आर्टरीज वो हर साल 2% ब्लॉकेज होता है इन ऑन एवरेज बता रहा हूँ, एक रफ फिगर। किसी की उम्र 40 साल की होगी तो कितना % ब्लॉकेज हो जाएगा? एनीबडी? कितना % होगा? 80% होगा ना। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे सारे काम करने के लिए, जैसे मैं भाषण दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं इसको, राइट। आप पार्टीज में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आप थोड़ा बर्थडे में डांस वगैरह कर लेते हैं, तो 20% ब्लड फ्लो की आवश्यकता है, 80% की जरूरत नहीं। किसी दिन अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, एकदम भागना पड़े, तो 20 की जगह 30% की जरूरत पड़ जाएगी। तो कितना डेफिशिएंसी हो गई? 10%। अब वो 10% के अभाव में ब्रेन विल ट्रिगर पेन इन दैट ऑर्गन, दर्द कि रुको या गिर जाओ, राइट। तो वो फेंट हो जाते हैं, आपने देखा होगा, राइट। गिर जाते हैं, वो देखा होगा, थक जाते हैं, हांफने लगते हैं, देखा, राइट। तो ब्रेन बोल रहा है भाई मैं 20% ब्लड लेता हूँ, लेकिन जो काम आप करने जा रहे हैं, भागने जा रहे हैं कुत्ते से बचने के लिए, राइट, उसके लिए 30% की जरूरत है। तो 10% अभी डेफिशिएंट है। लेकिन फिर भी आप अपने डर के हिसाब से आप भागेंगे तेजी से, तो व्हाट विल हैपन कि वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो बस्ट कर सकते हैं। अगर वो फट गए तो 80% 100% में कन्वर्ट होने में 1 मिनट लगेगा। और फिर जैसे मैंने एग्जांपल दिया 31 ईयर ओल्ड राज की, एकदम से डेथ हो सकती है उसी वक्त। इसीलिए अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए तो काटने दीजिए, भागेगा मत। काटेगा ही ना, उसका तो फिर भी इलाज है कुछ ना कुछ तो, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि मेरे बॉडी में ब्लॉकेज नहीं है तो वो एक। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।